Hello everyone. We have started in our last class banking chapter and we have finished that credit creation method also. Our next topic is CRR and credit multiplier. First, CRR full form is cash reserve ratio. What is CRR? Cash reserve ratio. So, as it is mentioned in the book, CRR is not determined by the commercial bank. So, that day also I have discussed that in foreign countries, other countries, these rates are determined by the bank itself, but in our country, these rates are determined by the RBI, and all the commercial bank have to follow that rate. So due to that it is mentioned CRR is not determined by the commercial bank themselves, it is determined by the RBI. Therefore it is also called LRR. Due to that it is also called LRR, that is legal reserve ratio, because RBI is a legal authority who is having legal power to do anything, any decision for the other banks or for the country's persons. So, due to that, CRR is also called as LRR. And commercial bank, what they are doing, they have to keep some reserve with themselves as a cash, that is called cash reserve ratio. See, commercial banks are required to keep the stimulated cash reserve not with themselves but with the RBI. The bank also keep excess reserve as vault cash with themselves. CRR is fixed by the RBI. We can find out credit multiplier or the number of times the commercial bank can create credit per unit of the cash reserve. See beta, first thing you understand, CRR is cash reserve ratio. Cash reserve ratio is fixed by RBI in our country. What how we are making this cash reserve ratio? बैंक इज हैविंग टोटल कैश रिजर्व्स, टोटल कैश जितना भी बैंक के पास आया होता है, टोटल जितनी भी चीज़ें बैंक के पास होती हैं, तो टोटल ऑफ दैट उसका जितना परसेंट आरबीआई ने बोला होगा तो उतना परसेंट, जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास 1,000 रुपये आए और आरबीआई ने कहा है 4%, तो 1,000 रुपये का 4% कितना हो गया आपका, कितना हो जाएगा 40 रुपीज़। तो वो 40 रुपीज़ हम आरबीआई के पास एज अ रिज़र्व बना देंगे। बाकी जो बचा वो बाकी हम लोगों को लोन देने के लिए रख लेंगे। तो कैश रिजर्व इज़ द रेशो विच इज़ फिक्स्ड बाय द आरबीआई to maintain reserve of total deposit what the bank is having, and that deposit reserve the bank have to keep with the RBI as a security, and leftover amount they can give in the form of loan. But suppose RBI has said that we have to make 4% reserve, so 4% reserve means 40 rupees reserve we are making, but bank सोच रहा है हमें 960 रुपीज़ लोन देना पड़ेगा, तो बैंक इतना नहीं चाह रहा लोन देने का काम, वो और कम करना चाहता है। तो बैंक ने 40 रुपीज़ की जगह 100 रुपीज़ रिज़र्व बना दिया। बैंक के पास बचे कितने, 900 रुपीज़, तो अब वो 900 रुपीज़ लोन के लिए यूज़ करेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा 60 रुपीज़ रिज़र्व बनाया है बैंक ने अपनी इच्छा से, क्योंकि आरबीआई ने तो उसको नहीं बोला, बट उसने अपनी इच्छा से ये एक्स्ट्रा जो रिज़र्व बनाया है उस रिज़र्व को कहा जाता है वॉल्ट कैश। आया समझ में बेटा ये सारी चीज़ें जो अभी समझाई मैंने? ओके। क्रेडिट मल्टीप्लायर, यू ऑल आर नोइंग क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मीन्स लोन देना, मल्टीप्लायर मीन्स कितने गुना, कितने टाइम्स हम लोन देते हैं अपने कैश रिजर्व का। जैसे देखो इसका फॉर्मूला आपको दिया है, के मीन्स मल्टीप्लायर, सी आर आर इज़ कैश रिजर्व रेशो। तो हमने कैश रिजर्व रेशो 10% माना, और तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, के इक्वल्स टू 1/10%। तो ये परसेंट का साइन हटा के 100/10 बन गया, 10 टाइम्स। दैट मीन्स हम 10 गुना ज़्यादा लोन देते हैं। ये प्रोसेस हमारी 10,000 तक चलती जाएगी, जब तक हमारे पास आए कितने थे,
10,000, तो 10,000 को अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये प्रोसेस 10 टाइम्स चलेंगी, 10 राउंड्स चलेंगे। तो जब तक ये 1 लाख नहीं हो जाएगा तब तक हमारा यही प्रोसीजर चलता रहेगा, जिसको कहा जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर मीन्स हाउ मेनी टाइम्स वी आर गिविंग लोन from the primary deposit. So that time is called as credit multiplier. Clear this thing also? Okay. Now our next topic, central bank and its functions. You all know what do you mean by central bank, beta? What is central bank? What is the function of central bank? What is the role of central bank? Other name of central bank, give me. Central bank other name is, yes. Other name of central bank is RBI in our country. But in other countries they are calling it by the other name. They have given some other name for their banks. It is developed first, RBI was developed in which year in India? 1935. 1st April 1935, first central bank developed in our India. Okay, and what we are calling it as a central bank is called as the apex bank. Apex bank means head of all the banks, सारे बैंकों का head, who is also called as the father of all the banks. He is having sole agency. Sole agency means monopoly power to issue currencies and to supply money in our country. No other bank is having this much power. So it serves, it is also called a government bank. It is also called a foreign country bank because foreign currency is maintained by RBI of our country only, of our country. So Reserve Bank of India is the central bank of India, means head of the India. So now functions of central bank. फर्स्ट फंक्शन सी, ये ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पूछें, इनमें से कोई एक आध पॉइंट आपसे पूछ ली जाती है. So listen it carefully, all the functions, any one point they can ask for 3 marks. So bank issuing notes. बैंक इशुइंग नोट्स का मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक के पास अकेली मोनोपोली पावर है हमारी कंट्री में जो नोट इशू कर सकता है, मतलब नए नोट प्रिंट आउट कर सकता है. इसीलिए इसको करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहते हैं. इसको और क्या कहा जाता है? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन. और जो नोट बैंक इशू कर, ये सेंट्रल बैंक इशू करता है, उसको लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, क्योंकि उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से. फर्स्ट फंक्शन इज क्लियर टू एवरीवन? सेकेंड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ये गवर्नमेंट का बैंक है. गवर्नमेंट का बैंक मतलब गवर्नमेंट, जैसे हम लोग पब्लिक अपने पैसे बैंक में जमा करती है, वैसे गवर्नमेंट भी अपना पैसा बैंक में जमा करती है. मगर गवर्नमेंट अपने पैसे जो हैं वो कमर्शियल बैंक में नहीं जमा करती. कहाँ पे जमा करती है? सेंट्रल बैंक में. तो सेंट्रल बैंक में गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स, अपनी मनी डिपॉजिट करती है, और अगर गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक से लोन भी ले लेती है, जैसे अपन लेते हैं. और सेंट्रल बैंक उनका पूरा हिसाब किताब मेंटेन करती है, गवर्नमेंट के इतने पैसे आए, इतने खर्च हुए, और गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम गाइडलाइन भी करती है एज आ एजेंट कि आपको लॉस हो रहा है, आपको इस समय अपनी सिक्योरिटीज़ बेचनी पड़ेंगी, इस समय आपको अपनी सिक्योरिटीज़ ख़रीदनी है. तो वो बैंक का पहले अकाउंट मेंटेन करती है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट के एजेंट जैसी बनती है, गवर्नमेंट को एजेंट के जैसे गाइडलाइन करती है. गवर्नमेंट को एडवाइज़र का काम करती है. एडवाइज़र मींस गवर्नमेंट के लिए न्यू पॉलिसीज़ बना के देती है कि अब आप इस पॉलिसी की जगह ये पॉलिसी करो, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो वो एडवाइजिंग का काम भी करती है. तो बैंकर टू दी गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए 3 फंक्शन करती है. एक बैंक का रोल, एक एजेंट का रोल, और एक एडवाइज़र का रोल. क्लियर दिस फंक्शन? The next function is bankers bank and supervisory role. मीन्स जो हमारी सिटीज़ में बैंक हैं, इतने सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, तो वो सारे कमर्शियल बैंक
की डीलिंग भी सेंट्रल बैंक करता है। मतलब सेंट्रल बैंक के पास सारे बैंकों का हिसाब किताब है कि इनके पास इतना पैसा रोज आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है, इन लोग इतना लोन दे रहे हैं, इतने % इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसीलिए उसको बैंकर्स बैंक भी कहा गया है। मतलब बैंकों का बैंक, सारे बैंकों का हेड राजा। तो ये सारे बैंकों को पहले क्या करता था, ऑर्डर देता था, बट अब ऑर्डर नहीं देता, अब बस सुपरवाइज करता है, मतलब गाइडलाइन करता है। गाइडलाइन क्या करता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से उन जैसे गवर्नमेंट का हिसाब किताब सेंट्रल बैंक करती है, तो ऐसे ही कमर्शियल बैंक को अगर अपने एक्स्ट्रा पैसे जमा करने हैं सेंट्रल बैंक के पास, तो इन लोग भी अपनी सेविंग सेंट्रल बैंक के पास जमा कर सकते हैं। और अगर कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत होती है तो ये सेंट्रल बैंक से लोन भी ले सकते हैं। मतलब कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। तो ये बैंक का काम करता है। सेकंड, ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे 3 बैंक हैं ए बी सी, तो ए ने बी से लोन लिया और सी ने बी से लिया, तो अब इन लोगों को एक दूसरे को पेमेंट करनी है। तो ये एक तीनों का अकाउंट जो है आरबीआई के पास है। तो जिसके अकाउंट में पैसे आए और अगर उसको पैसे देने हैं तो आरबीआई उससे पूछेगा भी नहीं, सीधे उसके अकाउंट से पैसे जिसको देने हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, जिसको कहा जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देन ये बैंक को सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है। सुपरवाइजरी रोल मीन्स सुपरवाइज करता है कि क्या रेट पे आपको सीआरआर रेट मेंटेन करना है, क्या रेट पे एसएलआर मेंटेन करना है, कितना इंटरेस्ट रेट टारगेट रखना है। मीन्स उनको गाइडलाइन करता है, सुपरवाइज करता है। बाकी डिसीजन कमर्शियल बैंक अपना अब खुद लेते हैं। आया ये समझ में बेटा फंक्शन? This function is also clear now. Then next function, lender of the last resort. मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ज़्यादातर पूछा जाता है आपका। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट का मतलब बैंक, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट का मतलब अगर बैंकों को पैसों की ज़रूरत होती है तो बैंक के पास आखिरी सहारा कौन होता है। जैसे अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किससे लोन लेते हैं, सबसे पहले हम अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं। अगर वो लोन दे दे रहे हैं तो हम लोग उनसे ले लेते हैं। और अगर उन लोग लोन नहीं देते, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग टू ज़मींदार लेंडर्स वगैरह के पास जाते हैं कि आप लोग लोन दे दो। अगर वहाँ से भी लोन नहीं मिलता तो हम फिर कहाँ पे जाते हैं, हम लोग फिर बैंकों में जाते हैं। यही सिस्टम होता है ना। तो ऐसे ही कमर्शियल बैंकों को अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो कमर्शियल बैंक कहीं से भी अगर पैसे अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, मतलब अरेंज नहीं कर पा रहे, तो लास्ट रिसॉर्ट उनके पास, लास्ट सहारा क्या होता है, सेंट्रल बैंक, जिनके पास वो पैसे जाकर लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक लास्ट बैंक है हमारी कंट्री में जो उनको लोन दे सकता है। और अगर सेंट्रल बैंक ने भी अगर उनको लोन नहीं दिया तो फिर उनको फॉरेन कंट्रीज से कमर्शियल बैंक को लोन लेना पड़ेगा। तो लास्ट रिसॉर्ट का मीन्स आखिरी सहारा हमारी कंट्री में लोन देने का, अगर उनको इमरजेंसी पड़ जाए कमर्शियल बैंक को। तो that banking system of the country does not suffer any setback, ताकि हमारे बैंकिंग सिस्टम को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी मनी मार्केट स्टेबल चलती रहे, इसलिए सेंट्रल बैंक इन लोगों को लोन देने का काम करता है। आया बेटा, ये भी समझ में आया? इट्स ओके? यस बेटा। नहीं बेटा, हम लोग डायरेक्टली डीलिंग है ही नहीं, परमिशन की हम लोग डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के पास जा सके, ऐसा कोई कम्युनिकेशन सेंटर ही नहीं है। हम लोगों के लिए मिडिल सेंटर बना हुआ है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट का हिसाब किताब बनाती है आरबीआई, तो दे आर गिविंग डायरेक्ट चैनल टू देम, बट हमारा डायरेक्ट चैनल हमें कमर्शियल बैंक बना के दिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक इसलिए बस बनाते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। दे आर वर्किंग, डूइंग वर्क। जैसे एग्रीकल्चर बैंक बना दिया, इंडस्ट्रियल बैंक बना दिया, तो वो बैंक बस उन्हीं पर्पज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इसलिए आरबीआई ये चीज़ करती जा रही है।
बट हम डायरेक्टली आरबीआई से कांटेक्ट नहीं कर सकते. देन नेक्स्ट इज कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कोई समझा सकता है? मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था हमारी कंट्री कितना रिजर्व बना के रखती है. 200 करोड़ का रिजर्व बना के रखती है. उस 200 करोड़ में कितना वो अपने पास रखती है? गोल्ड होता है, कितना फॉरेन करेंसी होता है, किसी को याद है? याद है बेटा किसी को कि नहीं? नहीं याद. 115 करोड़ का गोल्ड बना के रखती है और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी का रिजर्व बना के रखती है. तो ये फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो 85 करोड़ है किसके पास रखा है? आरबीआई के पास ही. इसीलिए इनने कहा है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मींस फॉरेन कंट्री की कस्टडी, फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी कस्टडी. ये कस्टडी किसके पास रखी गई है? आरबीआई के पास. तो आरबीआई के पास पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज यूज़ होती हैं, हम लोग जहाँ जहाँ हमारे कंट्री के लोग डीलिंग करते होंगे, ट्रेड करते होंगे, तो वहाँ वहाँ की करेंसी पूरी आरबीआई के पास रखी हुई है. और वो टोटल कितनी है आपकी? 85 करोड़. तो कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब है कि आरबीआई के पास पूरी फॉरेन करेंसी रखी रहती है और अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन आरबीआई उसको मैनेज करता है कैसे इंटरनेशनल मनी मार्केट में इसकी डीलिंग करें और कैसे हमारी कंट्री को ग्रोथ हो. उस चीज़ को कहा गया है कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी. दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर बेटा? देन नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन. अभी मैंने बताया था ऊपर क्लियरिंग हाउस फंक्शन, किसी को याद है? अभी जस्ट समझाया था. दो तीन फ्रेंड्स हैं, जैसे हम कह रहे हैं आर्ची, आशिका और अंजलि. ये तीनों ने तीन बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं. इन लोगों ने आपस में तीन दूसरे से पैसों की ज़रूरत थी तो आपस में कमर्शियल बैंक एक दूसरे से लोन लेकर रख लिए. अब इन लोगों को पे करना है तो इन लोग अभी पे नहीं कर रहे, बट इन तीनों के अकाउंट किसके पास हैं? आरबीआई के पास. तो आरबीआई ने देखा कि एक कमर्शियल बैंक को दूसरे को पे करना है, तो जैसे कमर्शियल उस बैंक में पैसा आया होगा, आरबीआई अपने आप उस बैंक से दूसरे बैंक को जिसको पेमेंट करनी है उसको ट्रांसफ़र कर देगी पैसे, जिसको कहा जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन. मतलब दूसरे बैंकों के ड्यूज़ अगर दूसरे बैंकों के साथ हैं तो वो दें या ना दें, आरबीआई के पास उनके खाते हैं, वो अपने आप ड्यू कर देते हैं. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो आपके मम्मी पापा को पता लग जाएगा कि आपको किसी की पेंडिंग देनी है, तो तुम दो या ना दो, आपके मम्मी पापा पेंडिंग देकर ख़त्म कर देंगे आपकी. सेम वे तो कमर्शियल बैंक के मम्मी पापा कौन है? आप, आरबीआई. तो जब आरबीआई को पता लग रहा है कि इन लोगों को इनकी पेंडिंग देनी है, तो इनके अकाउंट में जब पैसे आएंगे वो उनके अकाउंट से वहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, जिसको कहा जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन. आ गई बात समझ में बेटा? After clearinghouse function, last important topic is control of credit. Control of credit means हमारी कंट्री में कितना उधारी देना है, कितना लोन क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ये डिसाइड करने के पावर किसके पास है? आरबीआई के पास. आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहेगा हाँ आप इतने परसेंट पे लोन दे, इंटरेस्ट दे दो, लोन दे दो, तो कमर्शियल बैंक रेडी हो जाएगा देने को. आरबीआई मना कर देगा बैंक से कि नहीं अब लोन नहीं देना है किसी को, तो कमर्शियल बैंक नहीं देगा. तो कंट्री में उधारी कितना बढ़ाना है, मनी सप्लाई कितनी बढ़ानी है, कितनी मनी सप्लाई कम करनी है, ये डिसीजन कौन लेता है? आरबीआई. इसलिए आरबीआई को कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है. क्लियर? So all the functions are clear properly. See if any of the point having confusion, then ask. It's clear to everyone now? Yes, beta.
बेटा अभी वो ओपन मार्केट आ रहा है, वो मैं समझा रही हूँ वहाँ पे। फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक में हमारा लीजिंग और सेलिंग कैसे करते हैं, तो वो कंसेप्ट मैं वहाँ पे समझा रही हूँ। अब आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। बिना पॉइंट्स रीड करें मुझे बताओ, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस क्या है बेटा, क्या क्या हो सकता है, आप अपने व्यूज़ दीजिए। फर्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है? यस, कमर्शियल बैंक कांट इशू करेंसी। हाँ, issuing currency power is only with the in the hand of central bank. तो central bank can issue currency because its monopoly power is with the central bank only, but commercial bank cannot issue currency. Second, central bank is making account of government, so that's why it is called as government bank also, but commercial bank is not doing all these things. Then third, if anybody want central bank is the lender of the last resort, but commercial bank is not the lender of the last resort. मतलब जो functions हैं हम उन points को लेकर difference बना सकते हैं. Central bank control ये control credit in our country, commercial bank can't. Central bank is having a custody of foreign currency, commercial bank is not having. Central bank is having issuing note currency power, and commercial bank is not having. Central bank main motive is to focus on the growth and stability of an economy, but commercial bank work only for its own profit. आ गया समझ में डिफरेंस? ओके, सो देख लो, अगर कोई पॉइंट में डाउट है तो पूछ लीजिए, देन हमारा नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक चालू करूँ, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्लियरिंग हाउस फंक्शन बेटा देखो बुक की लैंग्वेज में ही समझ लो, मैं समझा रही हूँ आपको बुक की लैंग्वेज में एज इट इज मेंशन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मीन्स दे आर सेइंग सेंट्रल बैंक इज डूइंग दिस फंक्शन। टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। सपोज बैंक ए रिसीव अ चेक ऑफ 10,000 ड्रॉन ऑन बैंक बी। अच्छा, इनने दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझाया तो वो देखो। देखो जैसे एक ये चीज़ भी होती है, आपका बैंक अकाउंट, जैसे आप समझ लो आस्था बैंक ए है, आयुषी बैंक बी है और भूमि बैंक सी है। 3 बैंक है हमारी सिटी में। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, आस्था के बैंक में अगर चेक आएंगे तो आस्था के ही आएंगे, बट आजकल किसी भी बैंक के चेक कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे स्कूल में फ़ीस पे करने जाते हो तो पहले ये है कि बस यूको बैंक ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट अगर हम बैंक में पैसे जमा करने जाएंगे तो किसी भी बैंक का चेक बैंक को दे देंगे, बैंक वहाँ से कलेक्ट करके आपके अकाउंट में पैसे दे देगा। क्योंकि हमारा मेन अकाउंट अगर यूको बैंक में है तो हम यूको में स्टेट बैंक का चेक भी दे सकते हैं, हम कैनरा बैंक भी दे सकते हैं, हम पंजाब नेशनल बैंक भी दे सकते हैं। अब तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसे हमने आज यूको बैंक को अलग अलग बैंक्स के चेक दे दिए, तो उनने कलेक्ट कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। अब शाम को हर बैंक सिटी में एक हेड ऑफ़ द बैंक होता है। हमारी सिटी में एसबीआई है, तो शाम को 4-5 बजे वहाँ पे सारे बैंकों की मीटिंग होती है। सारे बैंकों की मीटिंग होती है और सारे दिन भर में बैंक में जिस जिस बैंक में दूसरे बैंक के चेक आए होते हैं, तो उन लोग शाम को जब मीटिंग करते हैं तो उनको हैंड ओवर कर देते हैं उनके चेक्स। तो उसको कहा जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। आया समझ में? ये एग्जांपल बुक में ये चीज़ दी है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन में ये भी बन जाता है एग्जांपल। क्लियर? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई अभी मैंने समझाया था हमारी कंट्री में कितना मनी सप्लाई का मतलब किसी को याद है? पहले मुझे ये बताओ, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है बेटा? कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? हमारी मनी सप्लाई का पहले मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब है हमारी कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास कितना पैसा है, in any form, either in cash form, in check form, in properties form. The total money in the hand of citizens of the country,
अदर देन द इशूअर हु इज मेकिंग मनी. तो मनी कौन बनाता है? बैंक एंड गवर्नमेंट, है ना. गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैंक बनाता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से ये सेंट्रल बैंक बनाता है, और कमर्शियल बैंक लोगों को सप्लाई करता है. तो इन तीनों को छोड़कर बाकी कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास जितना भी पैसा है उसको क्या कहा जाता है? मनी सप्लाई. ठीक है. तो मनी सप्लाई मतलब लोगों के पास पैसा. अब अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाएं, सिटीजन्स के पास, सबके पास ज़्यादा पैसे आ जाएं, तो क्या होता है? दे आर डिमांडिंग मोर गुड्स. वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करने लगेंगे. खुद सोचो, अगर आपके पास 100 रुपीज़ बस पॉकेट मनी है तो तुम 100 रुपीज़ का ही सामान खरीदने की कोशिश करोगे. बट अब इस महीने आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल गए, कोई रिलेटिव्स आ गया था, बर्थडे था, तो इस महीने आपके पास 2000 रुपीज़ कलेक्ट हो गए. तो अब आप 2000 रुपीज़ का सामान खरीदने की कोशिश करोगे अपना फेवरेट आइटम, कि नहीं खरीदने की कोशिश करोगे? हाँ या ना? तो आपकी मनी सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई. तो लोगों के पास जब ज़्यादा पैसे आते हैं तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है. जब हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हमारी डिमांड भी कम होती है. और जब हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाती है, पैसे ज़्यादा होते हैं, तो हमारी मनी सप्लाई भी बढ़ जाती है, डिमांड भी बढ़ जाती है. और जब कंट्री में डिमांड बढ़ती है तो क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन हो जाता है. और जब कंट्री में डिमांड कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? डिफ्लेशन हो जाता है. तो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई में हमें यही पढ़ना है कि अगर कंट्री में लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, मतलब अगर कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन हो गया है, तो उस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. और अगर कंट्री में मनी सप्लाई कम हो गई है, डिफ्लेशन हो गया है, तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, उस टॉपिक को कहा गया है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई. आया टॉपिक का सेंस? कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? इट्स क्लियर टू एवरीवन नाउ? ओके. सो इट्स डिटेल वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो. तब पूरा टॉपिक एक साथ समझाऊंगी, देन इट विल ईजी टू अंडरस्टूड. सो टुमारो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू रिमेनिंग. Keep studying.